Hello students, in this lecture we will discuss about the binary search tree, its introduction, its applications, insertion as well as deletion in the binary search tree. So first of all, introduction to the binary search tree, which is also known as BST in short. The BST is also known as a binary sorted tree or the ordered binary tree. And its definition can be given as a binary search tree is a tree in which the value of any node is greater than every value in its left subtree and is less than or equal to every value in its right subtree. अभी लेस देन और इक्वल टू का जो मेथड है ये ऐसा है कि अगर हम डुप्लीकेसी को अलाउ नहीं करते तो हम केवल लेस देन डेफिनेशन में देते हैं, इक्वलिटी हटा देते हैं, और अगर हम डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करेंगे तो हम लेस देन और इक्वल टू दोनों वर्ड यूज करेंगे. तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई. नेक्स्ट है कि इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. तो इट्स वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज big O of h, where h is the height of the binary search tree. It can also be given as big O of n, where n is the number of nodes. Now the applications of the binary search tree. Its major application areas are in databases, where it is used. Binary search tree is used as in the indexing and multi-level indexing. It is also used in Huffman algorithm, various searching algorithms, in the implementation of various searching algorithm, Huffman algorithm, and in the implementation of the dictionary. These are some major application areas of the binary search tree. Now let us discuss the creation of a binary search tree. How we insert new keys to the existing tree and we create the whole binary search tree. So there are some keys given and we have to generate or create a binary search tree. So first key is 30. So just make a node for the node 30. Now the next key is 25. 25 is less than 30. We know that in tree, every processing starts from the root node. So every time a new key is to be inserted, we have to process every time from the root node. Since 25 is less than 30, therefore 25 is attached as a left child of node 30, where 30 is the root node. Again, the next key is 80. 80 is greater than 30, therefore it is attached as a right child of the node 30. Next, 28. 28 is less than 30, therefore it goes to left direction, but it is greater than 25, therefore it goes to the right direction and attached as a right child of the node 25. Now the next key is 26. 26 is less than 30, so it goes to left. Greater than 25, so goes to the right. Again less than 28, therefore attached as a left child of node 28. Next key is 18. 18 is less than 30, less than 25, therefore it is attached as a left child of node 25. Now we have to attach a key 29. 29 is less than 30, therefore goes towards left. Greater than 25, so goes towards right, and again greater than 28, and so finally attached as a right child of node 28. Next, 95. 95 is greater than 30, so move right direction. Greater than 80, so again move in the right direction and attached as a right child of node 80. The next key is 106, 106. By the same rule, 106 is greater than 30, greater than 80, greater than 95, so it is attached as a right child of node 95. Now the next key is 100. 100 is greater than 30, greater than 80, greater than 95, but less than 106. Therefore, it goes right, 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 and it goes left from the key 106. So it finally attached as a left child of node 106. The last key is 12. 12 is less than 30, so goes toward left. Less than 25, again goes towards left. And finally, it is compared with the node 18. Since it is less than 18, therefore it attached finally as a left child of node 18. So this is our binary search tree, which is created with the help of the given keys. Now, the next question is how to find the smallest and largest value in any existing binary search tree. So the simple rule is that if we have to find the smallest value,
then we have to move from the root towards the left and goes to the leftmost node. The leftmost node will be the smallest value. And similarly, if we have to find the largest value, then from the root node we have to move right and right until there exists the last node in the, means we have to find the rightmost node. The rightmost node will be the largest value and the leftmost node will be the smallest value. For example, in the following tree, in the given tree which you are seeing on your screen, if you have to find the smallest value, then we have to move from 30 to 25 left direction, again go to the left direction, again go to the left direction. 12 is the last node in the left direction. There is no node beyond 12 which is in the left of 12. Means 12 is the last node or the leftmost node in the left direction. So it means that 12 is the smallest value. Similarly, if we have to find the largest value, then again from the root node we have to go towards a rightmost direction. So we move from 30 to 80, 80 to 95 and 95 to 106. 106 के लेफ्ट में तो नोड है लेकिन 106 के राइट में कोई नोड नहीं. अगर 106 का कोई राइट चाइल्ड होता तो वहां मूव करते, लेकिन राइट चाइल्ड है नहीं तो यहीं स्टॉप कर गए. एंड दिस 106 मींस 106 is the largest value of this binary search tree. Now the main and important concept of the binary search tree is the deletion of the keys from the binary search tree. How to delete any key from the binary search tree. So this is the rule. Suppose you have to delete a node and the name of that node is capital N. So there are three cases. Because we know that in a binary tree, at the most we have two child of any node. Minimum 0, maximum 2. Means the total possibility is either no child or one child or two child. So case 1 is for that condition where the node n, which is to be deleted, has no child node, means it is a leaf node. If we have to delete a node which has no child node or a leaf node, then we have to just delete the node. It is the simplest case. Now the case 2, where the node n has only one child node, exactly one child node. In this case, we have to replace the node n with its only child node. जो इसका इकलौता चाइल्ड नोड है उसी से इसको रिप्लेस कर देंगे. अब थर्ड केस में आते हैं जो कि इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. इफ द नोड हैज टू चाइल्ड नोड्स, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी नोड की बाइनरी ट्री के केस में, टू चाइल्ड नोड की. अगर दो चाइल्ड नोड है उस केस में आपको सिंपली डिलीट नहीं करना है, आपको रिप्लेस किससे करना है, या तो इन ऑर्डर सक्सेसर से या फिर इन ऑर्डर प्रेडिसेसर से. मींस रिप्लेस द नोड n विद इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर और द इन ऑर्डर प्रेडिसेसर. अब ये इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्रेडिसेसर कैसे फाइंड करेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो सिंपल यही तीन केसेस हैं. आपको जितने भी डिलीशन करने होंगे वो या तो केस 1 होगा या केस 2 होगा या केस 3 होगा. Now we see how to find the in order successor in the binary search tree. So there are two popular methods. Whichever is easy for you, you can follow. Method 1, write the in order traversal of the tree. चूंकि हमें in order successor find करना है तो आप उसका in order traversal उस tree का लिख लीजिए और उस ट्रेवर्सल में एक ऑर्डर मिलेगा कीज का. उस कीज में जिस पर्टिकुलर नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर चाहिए उस की के ठीक राइट में जो वैल्यू लिखी होगी वो उसका इन ऑर्डर सक्सेसर होगी और उसके ठीक लेफ्ट में जो लिखी होगी वो उसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर होगी. मींस the value just written just after the node n will be its in order successor, and the value which is written just before, means just left to the any particular key, is known as the in order predecessor of that key. और हम जानते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री के केस में अगर हम किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का अगर हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखते हैं तो हमें सारी कीज एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाती हैं. या यूं कह लीजिए अगर हमें किसी बाइनरी सर्च ट्री की सारी कीज को एक अरेंज्ड ऑर्डर में, मीन्स एक सॉर्टेड ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखना चाहिए. because in order traversal is the traversal which can give all the keys in the increasing order. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे ये हम इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करेंगे. सपोज आपके सामने जो ट्री है, इन दैट ट्री वी हैव टू फाइंड द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ नोड 25.
सो जस्ट राइट द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए आपको जितनी भी कीज इसमें दिख रही हैं उनको आपको एक ऑर्डर में लिख लेना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट 12 हो गया, फिर 18 है, फिर 25 है, फिर 26, इसी तरह आप लिखते जाएंगे, लास्ट तक 106 तक आपने सारी की लिख ली। अब आपको इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करना है 25 का। तो 25 को अगर हम मार्क कर लें तो 25 के ठीक राइट में जो वैल्यू लिखी हुई है वो उसका इन ऑर्डर सक्सेसर कहलाएगी, जो उसके बाद में है वो सक्सेसर कहलाएगा, और इस की के ठीक पहले जो वैल्यू है वो उसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर कहलाएगी। तो इस तरह से भी आप इन ऑर्डर प्रेडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेथड लेंदी लग रहा है तो सेकंड मेथड है, वो ज़्यादा इजी मेथड है, इसको आप मोस्टली फॉलो करते हैं, फ्रीक्वेंटली फॉलो करते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतना है कि फाइंड द लेफ्ट मोस्ट नोड इन द राइट सब ट्री ऑफ नोड एन। जिस नोड का आपको इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करना है उसका राइट सब ट्री ढूंढिए। आप उस राइट सब ट्री को सर्कल कर लीजिए, उस राइट सब ट्री पे फोकस करिए, और उसका जो लेफ्ट मोस्ट नोड होगा, मींस उस राइट सब ट्री के रूट से आप लेफ्ट 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 मूव करिए, और जो सबसे लेफ्ट का नोड है वही आपका इन ऑर्डर सक्सेसर होगा। या अगर ये और भी इजी है कि जो उस राइट सब ट्री में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में जो उसका लेफ्ट मोस्ट नोड होता है वही स्मॉलेस्ट की वैल्यू होती है। तो दोनों कहने का एक ही तरीका है, अल्टीमेटली रिजल्ट आपको एक ही मिलेगा। जो आपको इजी लगे, या तो लेफ्ट मोस्ट नोड समझ में आए तो उसे समझिए, अदरवाइज आप स्मॉलेस्ट की वैल्यू को आप फाइंड आउट करिए, वही उसका इन ऑर्डर सक्सेसर होगा। दोबारा से एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करिए सेम ट्री है और उसमें आपको उसी सेम नोड 25 का या किसी भी नोड का आपको इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करना है। तो जैसे 25 है तो 25 हमने मार्क कर लिया। अब 25 का राइट सब ट्री ये हो गया जिसको हमने यहाँ सर्किल कर रखा है। अब इसमें लेफ्ट मोस्ट नोड अगर हमें फाइंड करना है तो इस पर्टिकुलर ट्री पर केवल फोकस करना है, पूरे ट्री को नहीं देखना है, केवल इतने पार्ट को आप देखिए। ये हो गया इस पर्टिकुलर राइट सब ट्री का रूट नोड, और रूट से आप लेफ्ट मूव करिए। इसके लेफ्ट कोई होता तो वहां मूव करते, लेकिन ये लास्ट नोड है, यानी कि यही हो गया हमारा लेफ्ट मोस्ट नोड 26। इट इज द लेफ्ट मोस्ट नोड। ये अगर हम स्मॉलेस्ट वाला क्राइटेरिया फॉलो करें तो इस पूरे ट्री में जिसमें केवल 3 की है, 28, 26 और 29, उसमें 26 हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो इससे हमें ये पता चला कि 25 का जो इन ऑर्डर सक्सेसर है वो 26 है, यानी कि अगर 25 को डिलीट करना है तो हमें 25 को 26 से रिप्लेस करना होगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम कुछ डिलीशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर ए बाइनरी सर्च ट्री इज गिवन एंड वी हैव टू डिलीट द की वैल्यू 100। तो पहले 100 को हाईलाइट कर लिया। 100 को हमने देखा ये कौन सा केस है, हमने 3 केसेस पढ़े थे डिलीशन के लिए, केस 1, केस 2, केस 3। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये सबसे सिंपल वाला केस है, केस 1, जिसमें आपको केवल डिलीट कर देना होता, कुछ भी प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट केस है ये। तो इसका कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो सिंपली आप 100 को डिलीट कर दीजिए। जब आप डिलीट कर देंगे तो ये आपका फाइनल ट्री मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें सेम ट्री से हमें 106 को डिलीट करना है, 106 को। अब 106 को अगर आप देखें तो 106 इज ए केस 2 बिकॉज इट हैज ओनली वन चाइल्ड नोड। तो अगर एक सिंगल चाइल्ड नोड है और उस पर्टिकुलर ऐसे नोड को डिलीट करना है, यानी 106 हमारा कैपिटल N हो गया, जैसा आपने फॉर्मूले में पढ़ा था, अभी पहले रूल्स में पढ़ा था। अब इस 106 को केवल आपको 100 से रिप्लेस करना होगा, मींस रिप्लेस द 106 विद इट्स ओनली चाइल्ड नोड मींस 100। ये आपने रिप्लेस कर दिया। अब ये जो रिजल्टेंट ट्री मिला ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने ऐसा नोड डिलीट किया जानबूझ के जिसमें 2 चाइल्ड नोड हो, केस 3 को कवर करने के लिए। So let us delete the value 25 from the following BST. When you see the node 25, it is the case of it is a case 3 where the node has two child node 18 and 28. So in this case 3 में हमने क्या किया था कि हमें जिस नोड को डिलीट करना है अगर उसके 2 चाइल्ड नोड है तो हमें उसके इन ऑर्डर सक्सेसर या इन ऑर्डर प्रेडिसेसर से रिप्लेस करना होता है। तो सबसे पहले इन ऑर्डर सक्सेसर से कैसे डिलीट करते हैं वो देखते हैं। हमने फोकस किया इसके राइट सब ट्री पे। राइट सब ट्री मीन्स अभी आपको बताया भी था, ये केवल 3 नोड आ रहे हैं 25 के राइट सब ट्री में। उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 26 है, मीन्स 25 को हमें 26 से रिप्लेस करना होगा। हमने रिप्लेस कर दिया और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसी को हम इन ऑर्डर प्रेडिसेसर की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं कि सपोज करिए अगेन आपको 25 डिलीट करना है तो इसके आप लेफ्ट सब ट्री पे फोकस करिए। तो लेफ्ट सब ट्री का जो
राइट मोस्ट नोड होगा या कह लीजिए लेफ्ट सब ट्री का जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, लार्जेस्ट वैल्यू होगी, वो उसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर होगा। जैसे कि ये देखा आपने, इसमें 18, 12, 18 दो ही नोड आ रहे हैं इसके लेफ्ट सब ट्री में। उसमें से जो लेफ्ट राइट मोस्ट नोड है वो 18 है, या अगर आपको राइट मोस्ट समझने में दिक्कत हो रही है तो आप ये मान लीजिए कि उसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है 18, वो उसका इन ऑर्डर सक्सेसर होगा। मीन्स 25 को 18 से रिप्लेस कर दीजिए तो 18 यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो 18 जब ऊपर जाएगा तो 18 के साथ जो असेंबली लगी होगी, जितने भी नोड लगे होंगे, वो एज इट इज ऊपर मूव कर जाएंगे। आप ये देखिए ऊपर मूव किया, आप दोबारा से देखिए, ये कंडीशन थी, अब ये 18 और 12 पूरे पूरे शिफ्ट होकर ऊपर आ गए। तो ये हमारा फाइनल जो सिचुएशन थी, जो हमारा फाइनल ट्री मिलेगा, वो ये मिल गया। अब दोबारा में एक थोड़ा सा बड़ा ट्री लेते हैं, उसमें से हम 30 डिलीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने देखा जहाँ 2 चाइल्ड नोड होते हैं उस वाले नोड को डिलीट करने में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी तो हमारे लिए बड़े इजी है। तो 30 को हमें डिलीट करना है। 30 इज द रूट नोड ऑफ द गिवन बाइनरी सर्च ट्री। अब आपको इसके लिए पूरे इसके राइट सब ट्री में फोकस करना होगा। तो आप इसके राइट सब ट्री में फोकस करेंगे तो देखिए ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके ये पूरा राइट वाला पार्ट जो है, ये 30 का राइट मोस्ट नोड है, ओ सॉरी राइट सब ट्री है। अब इस राइट सब ट्री का आपको लेफ्ट मोस्ट नोड फाइंड करना है या स्मॉलेस्ट की फाइंड करनी है। तो इस राइट सब ट्री का आप देखिए 52 जो है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू कह लीजिए, या इसी का ये लेफ्ट मोस्ट नोड है, क्योंकि इस राइट सब ट्री का ये रूट हो गया 80, 80 से आप लेफ्ट मूव किए 68, 68 से लेफ्ट मूव किए 52, 52 के लेफ्ट आप नहीं जा सकते, मीन्स ये हमारा लेफ्ट मोस्ट नोड हो गया। तो आप चाहे स्मॉलेस्ट की के थ्रू समझिए या लेफ्ट मोस्ट नोड के थ्रू समझिए, आप 52 पे ही पहुंचोगे, यानी कि 52 इज द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ द नोड 30। तो ये हो गया। अब इसको केवल जस्ट 52 को यहाँ से डिलीट करके और उस पर प्लेस कर देना है, यानी कि यहाँ से कट करके वहां पेस्ट कर देना है, जिसको हम रिप्लेस करना बोल रहे हैं। तो 52 यहाँ से जाएगा और 30 को ये रिप्लेस कर दिया। दोबारा से देखिए, 52 यहाँ था, हमने यहाँ से कट किया, और जब कट करेंगे तो देखिए आप ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो 52 के जितने भी नोट थे राइट साइड में होगा, जाहिर सी बात है लेफ्ट में होता तो हम और मूव करे होते, लेकिन हमें इसमें केवल राइट डायरेक्शन में दो नोड है, 59 और 62। जब 52 ये आगे मूव करके 30 की तरफ जाएगा तो ये नोड इसका जगह ले लेंगे। तो आप देखिए इसमें 59 ये 68 का, यानी कि 52 का जो पेरेंट था 68, अब उसका नया चाइल्ड नोड 59 बन जाएगा, और चूंकि 59 62 अटैच्ड हैं तो ये पूरा पूरी असेंबली यहाँ मूव कर जाएगी, ये देखिए, और 52 उसको रिप्लेस कर देगा। दोबारा से एक बार देख लीजिए, ये कंडीशन थी, यहाँ है, और 52 ने फाइनली डिलीट कर दिया। ये आपको समझाने के लिए इतना बनाया, कॉपी में तो आप डायरेक्ट आप लिखेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये फाइनल ट्री हो गया जो कि 30 को डिलीट करने के बाद मिला है। तो ये सब कुछ था बीएसटी के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम एवीएल ट्री पढ़ेंगे। तो आप हमारा ये चैनल है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।